Hello friends, my name is Animesh Tayal. Welcome back to my channel TNC IT Solution. Here we are discussing the complete course of compiler design, or you can say language processor. Before this video, we have already discussed all the basic functionality of 6 phases of compiler. I think all of you had watched that videos. Today we will discuss symbol table management and error handler. I will provide a brief description of the functionality of symbol table management and error handler. These are the two essential functions which are attached to each phases of compiler and play the important role for compiler design. So let's start one by one. First is symbol table. So friends, what is symbol table management, which I have already discussed with you in my first slide, or you can say first video. The information of first video is displayed here. So friends, what is symbol table management? Symbol table management is nothing but the data structure. Let's see some definitions. First one is symbol table is an important data structure which store the information of all the variables and procedures in the program. Clear? So it is a important data structure. Clear? Uh, some keywords, variables, user defined variables, etc. And all the procedures, functions, predefined procedures. Here, all the information regarding that variables and procedures will be stored in symbol table. Symbol table will manage all the attributes of variables and procedures. Let's see another definition. Symbol table manager is used to store the record for each identifier and procedure encountered in the source program with relevant attributes. Here, so it will store all the attributes of identifiers and procedures, functions, user defined variables, means identifiers, etc. Means all the information regarding the each keyword, each operator, operand, everything will be stored in symbol table. Here with some attributes also. So let's focus on attributes. Which type of attributes will be stored in symbol table and which type of attributes will be attached with identifiers, variables, procedure, etc. Here, so these are the two definitions. Both are correct. Both are sufficiently explain you the main functionality of symbol table. Here, these are single line definitions. You should remember these definitions. Here, so what are the types of attributes और ऑपरेशन ऑन सिंबल टेबल. क्लियर? कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मेन एट्रीब्यूट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. लाइक नेम इज एट्रीब्यूट. टाइप मीन्स सपोज यू आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल्स यूजिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. तो हर पर्टिकुलर वेरिएबल जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं उनके साथ उनका टाइप एक एट्रीब्यूट होगा. उनका एड्रेस मीन्स में उनकी मेमोरी लोकेशन. उनका डायमेंशन, अगर वो सपोज एरे वेरिएबल्स हैं तो डायमेंशन should be static, dimension should be stored in the symbol table, line of declaration, line of usage, etc. Means all the information regarding that variable or function is called attributes and will be stored in symbol table. Here, suppose you can say id1, token is id1, so id1 dot name a, id1 dot type integer. Clear? Like that. id1 dot place means उसका address. Clear? वो memory location. Everything. So everything which is associated with the variable name or function name, procedure name will be called attributes, and these are the types of attributes. Another thing is operation on symbol table. There are
some basic operation, and we have two types of programming language: non-block structured और block structured. Clear? फ्रेंड्स, नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के लिए तो सिर्फ दो ही फंक्शन सफिशिएंट है. वन इज इंसर्ट फंक्शन, जो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे. और अनदर वन इज लुकअप, मीन्स अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल से फेच करना है तो वी विल यूज लुकअप फंक्शन. वी विल पास द वेरिएबल नेम in with lookup function, and lookup function will return all the attributes of that variable name or that token. Here, similarly, for block structured language, insert and lookup ये दो function as it is रहेंगे. Two or more functions are there, that is set or reset. Set or reset means उनकी जो values को block structured language है उनके जो स्कोप रहता है ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज में, स्कोप इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी पड़ती है. ग्लोबल वेरिएबल्स हैं कि लोकल वेरिएबल्स हैं, उनका स्कोप कहाँ तक है, वो सब सेट रिसेट करने के लिए भी फंक्शंस ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज में आपको रहेंगे. क्लियर? अनदर इम्पॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स which type of data structures will be used for symbol table, for non-block structured language or for block structured language. So for non-block structured language, we can use three types of data structure like linear list, search tree and hash table. linear list मतलब आप लोगों ने data structures में पढ़ा होगा. linear list में कौन कौन से data structures आते हैं? linked list है ना, array, linked list etc. बहुत सारे data structures हैं जो linear list के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. these are called linear data structures. सर्च ट्री में बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रीज आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े हैं, वो सभी बाइनरी सर्च ट्री है ना, एवीएल ट्रीज एटसेट्रा. यस, एंड सिमिलरली हैश टेबल आल्सो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज. सो रिमेंबर दिस. I think I will discuss this particular data structure when we will discuss the symbol table management in detail. Hash table is the most suitable data structure for non-block structured language. Similarly, for block structured language, where you have to store the scope information of variables, global and local variables, so we will use stack here. So like linear list, stack will be used for symbol table, stack tree and stack hash structure. So these are the three data structures again for block structure language. Remember one thing, for block structure language, stack is important. For each data structure which are using stack will be can be stored the scope information of global and local variables. So this is more very important issue, means which data structure should be used for symbol table. So it depends upon the structure of language, whether it is non-block structure or block structure. Clear? So that is all about the data structures and variables, operation, etc. Now the most important, role of symbol table with each phase, means आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अभी भी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर ये दोनों जितने भी फेजेस हैं उन सभी के साथ कनेक्टेड है. अगर कनेक्टेड हैं तो सभी के साथ कुछ ना कुछ इनका रोल भी होगा. क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंटरव्यूज में या फिर वाइवास में बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबल टेबल विद ईच फेजेस. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस इट. Suppose these are the 6 phases. Clear? And one by one we will discuss the role of symbol table with each phase. First one is lexical analyzer. So creates new entries
फॉर ईच आइडेंटिफायर और प्रोसीजर। जितने भी आइडेंटिफायर और प्रोसीजर्स प्रोग्राम में एनकाउंटर होंगे उन सभी के लिए एक एंट्री क्रिएट करेगा सिंबल टेबल में, उनके नाम के साथ, आइडेंटिफायर्स के साथ, टोकन्स के साथ। प्रोसीजर्स के भी पर्टिकुलर टोकन्स क्रिएट होंगे। क्लियर? नेम ऑफ प्रोसीजर्स विल बी द अगेन यूजर डिफाइंड। क्लियर? So it will create new entries. Then another one is syntax analysis. This is most important operation. Add various attributes and information to each entity. Entity means here entity where I am using entity. Entity means identifiers and procedures. So जो मेन फंक्शनैलिटी है स्टोर करने की, जो मेन फंक्शनैलिटी सिंबल टेबल जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स स्टोर करना। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स सिंटेक्स एनालिसिस पे जिस टाइम वो सिंटेक्टिकली ग्रामर को टोकन्स को चेक करेगा यूजिंग ग्रामर, उसी टाइम उनके एट्रीब्यूट्स क्या एट्रीब्यूट्स हैं और प्रोसीजर्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो सब स्टोर करेगा, ऐड करेगा सिंबल टेबल में। थर्ड इज सिमेंटिक एनालिसिस। इट विल यूज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मीन्स जो सिंबल टेबल में जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज करेगा टू चेक whether the information is semantically right or wrong। मीन्स ये स्टोर कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ चेक करेगा। एंड टाइप कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो टाइप कास्टिंग में अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो वो इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो वो इंफॉर्मेशन सिमेंटिक एनालिसिस स्टोर भी करेगा। क्लियर? नेक्स्ट फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इंसर्ट टेम्परेरी वेरिएबल्स, टेम्परेरीज क्रिएट करते हैं, हमने डिस्कस किया इसके पहले। वी आर क्रिएटिंग द टेम्परेरीज, टेम्परेरी वेरिएबल इंफॉर्मेशन एंड लुकअप वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज। क्लियर? मीन्स जितने भी प्रोग्रामेबल टेम्परेरीज हमारे पास रहते हैं वो सभी प्रोग्रामेबल टेम्परेरीज की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी पड़ेगी, इंसर्ट करनी पड़ेगी यूजिंग इंसर्ट फंक्शन एंड लुकअप फंक्शन के थ्रू। जितने भी एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर्ड हैं, क्लियर, उनको वो लुकअप फंक्शन के थ्रू फैच कर सकता है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जब आप बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये सिंबल टेबल में क्या क्या स्टोर रह सकता है और क्या किस तरह से सिंबल टेबल से एट्रीब्यूट्स को फैच करेगा। क्लियर? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, लेकिन सिंबल टेबल मैनेजमेंट will play the important role for intermediate code generation। अगर सिंबल टेबल मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एंड प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोर नहीं होगी तो कंपाइलेशन टाइम फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करना है, सो प्रोवाइडेड कि वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर्ड हो, एक अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टोर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन। Modified, it will modify the symbol table entries according to optimization of temporaries। Clear? हम कोड इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। दीज आर द मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन में आप नंबर ऑफ टेम्परेरीज, नंबर ऑफ 3 एड्रेस कोड को ऑप्टिमाइज करते हो, क्लियर, मिनिमाइज करते हो, उसका डेटा फ्लो चेक करते हैं। तो वो सब करने के बाद जब नंबर ऑफ टेम्परेरीज मिनिमाइज हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, सो उनको रीस्टोर करना, मॉडिफाइड करना सिंबल टेबल में, ये इस फेज का काम है। सो ये फेज का सिंबल टेबल के साथ जो एसोसिएशन है वो इस रिगार्डिंग रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन। क्लियर? इट विल जनरेट द कोड यूजिंग द एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ द आईडीज। एड्रेस इंफॉर्मेशन कहाँ है? एड्रेस इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में है, मीन्स की मेमोरी लोकेशन। तो जब तक वो मेमोरी लोकेशन इस पेज को नहीं मिलेगी तब तक वो उनके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आप लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि किस तरह से मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस में, है ना। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स वहाँ पे आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। वो सब
लास्ट फेज के लिए एसेंशियल है। सो आई रिकमेंड यू कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट्स के जितने भी रिलेटेड टू प्रोसेसर, एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन सेट एटसेट्रा जितना भी है उसको थोड़ा सा एक बार अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दें। तो आपको वो पेज थोड़ा बेटर समझ में आएगा जब हम वो पेज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो करंटली इट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप इतना याद रखो कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबल टेबल। क्लियर? क्या रोल है? इट विल generate means object code generation will generate the code using the address information of IDs stored in symbol table. Clear? So these are the 6 phases and 6 phases goal of symbol table with each phases. So I hope you will remember all the basic functionality, basic role of each with each phase of symbol table with symbol table. So okay, I think you all of you now understood the concept of symbol table. Now start एरर हैंडलर। एरर हैंडलर बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर यहाँ पे आपको नहीं डिस्कस करूँगा बस। क्लियर? इसको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तभी इसका पूरा रिकवरी एंड डिटेक्शन दोनों फंक्शनलिटी को एक्सप्लेन करूँगा। बट इसकी भी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। लाइक द कंपाइलर शुड बी एबल not only to detect errors but also to recover from them. It means friends, कंपाइलर को कंपाइलर वर्ड्स है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हमने जो डिफरेंस डिस्कस किया था, तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल मैंने आपको एरर हैंडलर फेज का ही बताया था। कंपाइलर डिटेक्ट भी करेगा, उसको वहां से रिकवर भी करेगा। इंटरप्रेटर सिर्फ डिटेक्ट करता है, रिकवरी नहीं करता है। तो वहाँ एरर डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन है, हैंडलिंग के लिए नहीं। डिटेक्शन एंड रिकवरी ये दो पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंपाइलर का जो इंटरप्रेटर के साथ जो बेसिक डिफरेंस है वो है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। दैट मीन्स कंपाइलर के कंपाइलर्स के थ्रू कोई भी फेज जब भी कोई एरर डिटेक्ट करेगा तो हैंडलर को रिपोर्ट करेगा, एरर हैंडलर को। एंड एरर हैंडलर की फंक्शनलिटी क्या है? द फंक्शनलिटी ऑफ एरर हैंडलर इज recover that point of execution from the hang position and shift to the next token or next line according to the error phase. Means अगर lexical analyzer ने error detect की है तो what is the functionality of error handler? From the hang position of that particular pointer, जिस particular keywords या variable या operands पे कोई एरर डिटेक्ट हुई है या ऑपरेटर पे एरर डिटेक्ट हुई है तो वहां से उसको निकालना है और नेक्स्ट टोकन तक लेके जाना है। क्लियर? एंड जिस पोजीशन पे एरर मिली है उसका लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर वो सब कुछ स्टोर करके एक प्रॉपर एरर मैसेज आपको डिस्प्ले करना है। दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ एरर हैंडलर। क्लियर? तो डिस्प्ले हो जाएगा विद प्रॉपर एरर मैसेज, बट उसको उस पोजीशन से निकाल के नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना जिससे कि प्रोग्राम का कंपाइलेशन कंटिन्यू हो सके। दैट इज कॉल्ड रिकवरी। क्लियर? रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी एरर्स जो यूजर ने की हैं वो रिमूव कर देगा और कंपाइलर कोई एरर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। नो, रिकवरी मीन्स रिकवरी फ्रॉम द करंट पोजिशन टू कंटिन्यू द कंपाइलेशन। क्लियर? एक्सप्लेनेशन में भी आप पढ़ सकते हो। even in the presence of errors, the compiler should scan the entire program and try to compile all of it. क्लियर? आई थिंक एरर हैंडलर का यही एक बेसिक फंक्शन है। सो हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसके रिकवरीज कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस फेज के साथ कैसी रिकवरी होगी, कैसे रिकवरी टूल्स हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे। क्लियर? दैट इज सफिशिएंटली आपको जो पता होना चाहिए बेसिक फंक्शनलिटी एरर हैंडलर की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सिंगल लाइन डेफिनेशन है, यू कैन रिमेंबर इट एंड इट इज कनेक्टेड विद ईच फेजेस ऑफ कंपाइलर। क्लियर? हर फेजेस के साथ उसके भी अपने अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो भी हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आप इसको
इसी तरह से याद रखें कि एरर हैंडलर के क्या दो प्रॉपर फंक्शन है, दैट इज वन इज डिटेक्शन एंड अनदर वन इज रिकवरी फ्रॉम द pointer, compilation pointer from the error position, clear, to the next token or next line to continue the compilation, clear. So I hope friends all of you understood the concept of error handler and symbol table management, clear. Thank you very much. Keep watching. Stay home, stay safe. Thank you.